Hello everyone. तो let me introduce myself सबसे पहले. So I'm Arpit Singh. I gave my third attempt this year in 2025. इस साल मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट दोनों के मेंस में अपीयर हुआ हूँ. आई हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू ऑलरेडी फॉर सिविल सर्विसेज एंड दिस टाइम मेरा काफ़ी अच्छा गया था प्रीलिम्स. लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग 110 प्लस विच इज़ लाइक अराउंड 25 to 30 मार्क्स above the cutoff. Expected cutoff. CSAT में I am expecting around 35, 135 plus 140. And इससे पहले like to give more of my background, I am a graduate from computer science in IIT Delhi. In JEE 2012 I got all India rank 71. And I want to just right now show you my CSAT paper from last year 2024 का, because उसका we already have the official marks for that. I got 177.5 in that. So this is my mark sheet. So देखो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है. Now look, I have talked to so many people in this preparation. People जिनका जनरल स्टडीज़ का their concepts in general studies are very well sorted. They understand topics very well. In fact, I have learned from many people. I have had my own understanding. मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन हुई है काफ़ी लोगों से बात करके. But when it comes to CSAT, I see a lot of people struggle with this. And by struggle I mean even if they're clearing the cutoff, it's जो 66 marks का cutoff होता है, they have this fear कि इस साल अगर मुश्किल आ गया पेपर, if in 2026 CSAT पेपर ज़्यादा मुश्किल आ गया, so will they be able to clear the cutoff, or there's a fear that you'll be stuck around the margins, and that is not something anybody wants to have, right? Nobody wants to have that fear. तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है. आई एम नॉट गोना सॉल्व द एंटायर पेपर, बट आई एम गोना सॉल्व मोस्ट ऑफ इट, स्पेशली नॉन कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस. है ना? आई वांट टू जस्ट क्रिएट दिस फीलिंग कि इसमें ना कुछ देयर इज नथिंग मिस्टिकल अबाउट दिस. लाइक मेरा आई गॉट 177.5 एंड मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था जो नॉन आरसीज में गलत हुआ है. सो क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब में एक्सेप्ट वन, ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस वर करेक्ट, एंड आई डिड दैट विद इन द टाइम. And there's no fancy trick here. There's nothing that cannot be achieved by anyone. And I think human beings learn best by example. So यही मेरी approach रहेगी. I'm going to cover most of the questions. You're going to see me मैं कैसे approach करता हूँ actual paper में. And then so there will be follow-up videos. I will have a lecture series जिसमें मैं cover करूँगा CSAT in detail. But right now this is just to show how it is done. And how इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, and you will see for yourself. So ये जो मेरे पास कॉपी खुली हुई है, this is my own scanned copy of last year का CSAT का पेपर. So reading comprehensions, like I'll not do everything because see, reading comprehension is something जिसमें there is a scope for ambiguity. कोई एक स्टेटमेंट को आप मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड इसीलिए कोचिंग के आंसर कीज में भी सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर कीज में होता है. बिकॉज यू कैन नॉट फॉर श्योर से कि यही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. देर आर सम इजी क्वेश्चंस, देर आर सम डाइसी क्वेश्चंस जिसमें इधर भी हो सकता है आंसर, उधर भी हो सकता है. सो दैट इज नॉट द डिफरेंस मेकर. आई फील द डिफरेंस मेकर इज हाउ यू परफॉर्म इन बाकी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, नॉन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. So let me just go through a couple of them here. Like for example, मैं क्या करता हूँ. So मेरा paper attempt approach क्या रहता है? I start from question 1 and then linearly I solve till question number 80. Some people might have a different approach. I'm not saying कि इसका एक ही best approach है. मेरे को अच्छा लगता है कि थोड़ा मैं RCs कर रहा हूँ and then I'm doing quantitatives like math वाले questions, logic questions. So ना दोनों balance out हो जाते हैं. आई फील कि थोड़ा ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स रेस्ट हो जाते हैं. आई मीन दैट्स माई एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग इट, सो दैट्स वाई आई प्रेफर दैट वे. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट वुड माई अप्रोच वुड बी? माई अप्रोच वुड बी सिंपली जस्ट लाइक मोस्ट पीपल. तो मैं सबसे पहले जैसे कोई पैसेज होता है तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, आई जस्ट रीड द क्वेश्चन क्विकली कि ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज emphatically conveyed by the author of the passage. Without science, mankind could not have continued to exist till today. It is a science, ठीक है, mankind science की बात हो रही है. So that once I have read the options, my mind is kind of tuned
आइडेंटिफाई यही वाली चीज़ें। सो मैं साइंस मैनकाइंड के रिलेशनशिप्स जो मेंशन हो रखे होंगे वो मैं सोचूंगा. So history of science is the real history of mankind. In the striking epigram, a 19th century writer links science with his background, like most epigrams. It's powerfulized and emphasizing by contrast an aspect of truth. ठीक है. Easy to overlook relations between science and mankind. ठीक है. कोई जो फॉर्मर है, it's not some abstract third party. अच्छा, it is not an abstract third party. अच्छा, ऐसे हम कर देते हैं कि उसकी तारीफ कर देते हैं for his beneficial influences and उसको ब्लेम कर देते हैं फॉर द हॉरर्स ऑफ वॉर, साइंस एंड मैनकाइंड. ठीक है. येट वी हैव सीन दैट इन स्पाइट ऑफ द काउंटलेस opportunities of improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. ठीक है, ठीक है. This is an inevitable result of the progress of science. Okay. And इसमें पूछा है कि क्या emphatically convey किया गया है, like what is the important, are these the important points conveyed? And naturally इसका first statement क्या था कि without science mankind could not have continued to exist till today. I don't think ऐसा कुछ बोला है, but I have marked this here, right? And it is a science which will ultimately determine the destiny of mankind. ऐसा भी कुछ नहीं बोला है. So I think this answer is wrong, and I think as per the answer key, the answer should have been D. But मैंने यहाँ A mark किया, and this is why I wanted to show कि ऐसा हो जाता है. So I have taken 2 minutes here, as you can see in the timer. But यहाँ पे अच्छा है कि एक ही पैसेज है, 2 क्वेश्चन है. So you have around 3 minutes for these 2 questions. तो वो हो सकता है. इस वाले पैसेज में I think इसमें कितना था? Okay, इसमें भी 2 क्वेश्चन थे पर पैसेज, ये पैसेज तो छोटा ही है. ये क्या था? इसमें भी मैं वही करूँगा कि okay, when we meet other people while we travel, we learn to differentiate between imagination and understanding, communities and nationalities, local values and universal values, friends and foes. ठीक है. Only with long experience, opening of wares on many a beach where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries, and what is parochial and what is universal and in his choice. Such delicate goods as justice, love and honor, courtesy. ठीक है, ठीक है. ये सब जो ओके, वैल्यूज आर वैलिड एवरीवेयर, ऐसी कुछ बात हो रही थी. वेरियसली मोल्डेड, डिफरेंटली हैंडल्ड. ठीक है. इफ यू मीट देम इन अ फॉरेन लैंड एंड आर्ट ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. तो यार तो सिंपल सी वैल्यूज की ही बात हो रही है, इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ नहीं है. तो ये मेरे को ये क्वेश्चन तो ईजी था. सो दिस इज द जनरल अप्रोच ऑफ आर सीजन. आई थिंक इसमें कुछ अलग नहीं है. आई डोंट बिलीव आर सी इज अ डिफरेंस मेकर, बिकॉज लेट्स से अगर 27 RCs हैं, सो लास्ट ईयर देयर वर 27 RCs, इवन दिस ईयर ऑल्सो आई थिंक. तो इसमें देयर इज स्कोप कि आपके या you might get 20 correct, you might get 25 correct, but you cannot for sure say कि 27 के 27 सही होंगे. But you are obviously going to attempt all of them, so that is something that is always there. So I want to now move to non-RCs, and I think that is the main purpose of this video कि मैं उनको कैसे solve करता हूँ. So let me start this timer again. Okay, and all right. So moving on to this question कि okay, let x be a 2-digit number, y be another 2-digit number. ठीक है. देखो सबसे पहले जो 2-digit नंबर होते हैं ना, मैं इसको हमेशा ऐसे लिख देता हूँ कि okay, x is equal to p q. और एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? 10 into p plus q. यही होते हैं 2-digit नंबर. एंड y को क्या बोला है कि वो उसका रिवर्स है, तो ये होगा 10 into q plus p. अब क्या बोले x plus y क्या है? x plus y तो मेरे को पता है, इट इज 11 into p plus q. एंड बोला है कि इट इज अ ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर. ओके, ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर. इट मीन्स 99 की बात हो रही है. इट मीन्स ये जो है p plus q is equal to 9. व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? तो p plus q 9 है. x अगर मेरे को p और q पता चल गया तो मेरे को x पता चल गया. तो p और q क्या हो सकते हैं? 18, 27, 36, 45. एंड इसमें ऐसा नहीं बोला है कि x बड़ा है y से, तो इनके 4 कॉम्बिनेशन और ऐसे ही होंगे 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4. तो इसलिए ये 4 और 4 8 हो गए कॉम्बिनेशन. 1 minute 15 seconds में हो गया सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ 6 बॉयज, वेट ऑफ 7 गर्ल्स. देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं सीधा, दिस इज अ इंग्लिश एक्सप्रेशन, मैं इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करता हूँ. तो मैं इसको सीधा ये लिखूंगा, 6 into b इज इक्वल टू 7 into g गर्ल्स, 3 men इज इक्वल टू 4 women. ओके, ये बता रखा है. अब एवरेज वेट की बात हो रही है. सो यहाँ पे 4 women है, बट मैं मानूंगा कि
जो 4 women का वेट है वो एवरेज वेट ही होगा, मतलब वी द टोटल वेट ऑफ ऑल दीज women विल बी 4 into 63, वही बात हो रही है। इंडिविजुअल women एक का वेट कम हो सकता है, एक का ज़्यादा हो सकता है, बट एवरेज 63 है। और ये इज इक्वल टू 6b, बिकॉज एवरेज ऑफ द बॉयज पूछा है। तो इसको ये गया 2, ये गया 3, ये गया 21, 2 into 21 42 हो गया, वहाँ से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। ओके, देखो इसमें सिंपल सी बात है, कुछ फॉर्मूला नहीं है इसमें, क्लॉक बना लो। क्लॉक हम सबको पता है कि 10 ऐसे बजता है, ये मान लो 10 बजा हुआ है, 12 बजा हुआ है, ये 10 AM है। अब क्या होगा, हमें 2 PM तक जाना है, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो 11 PM होने के लिए ये एक ना एक बार तो मिलेगा इससे, ये क्योंकि यहाँ पे पीछे ये आगे था, ये आगे था, ये वापस आगे आ गया, सो ये 11 हो गया, ये 11 12, ये 11 AM हो गया। अब हमको पता है कि 12 नून को तो दोनों सेम सेम ही उस पे होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। सो यहाँ पे दूसरी बात कोइंसाइड क्या होगा, जब ये 12 बज गया, ऑलराइट। अब 12 बजे के बाद 1 बजा है, सो आर एंड अभी मिनट हैंड दोनों बराबर हैं, अभी आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाता है, राइट। दिस इज 1 PM। सो ऑब्वियसली ये सी ये मिनट हैंड आगे था, तो ये आगे ही रहता रहेगा, आगे रहता रहेगा, अब तक इसने ओवरटेक नहीं किया है। सो अभी तक 2 ही बार इसने 2 ही बार दीज टू कोइंसाइडेड, एंड फाइनली 2 बजे होने से पहले ये इसको एक बार ओवरटेक करेगा, सो एक बार कोइंसाइड और करेगा तो 3 बार हो जाएगा। सो 10 से 11 के बीच में, 12 बजे के बीच में, और 1 से 2 के बीच में, ये दीज आर द 3 times दे विल कोइंसाइड, तो 3 आंसर। कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, ओके, ठीक है। सो देखो, कैलेंडर की क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, एक को एक ही कॉन्सेप्ट पता है, दो कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज लाइक 26th ऑफ डिसम्बर, आज डे क्या है, व्हाट इज द डे टुडे, फ्राइडे है, राइट। सो फ्राइडे है, इसको मैं 7 दिन बाद एग्जैक्टली सेम फ्राइडे आएगा, 14 days बाद भी एग्जैक्टली भाई फ्राइडे आएगा, 350 दिन बाद, बिकॉज 350 इज 7 into 50, तो 350 days के बाद भी 357, एंड 364 days के बाद भी फ्राइडे ही आएगा, लेकिन 365 days के बाद एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। सो बेसिकली अगले साल 26 दिसंबर 2026 को सैटरडे हो जाएगा। तो एक साल में हम बेसिकली अगर लीप ईयर नहीं है तो +1 days आगे बढ़ जाते हैं, और अगर लीप ईयर है तो +2 days आगे बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज वाइंग टू फिगर आउट कि एक ऐसा साल आएगा जब हम 7 दिन आगे बढ़ जाएंगे। सो 2026 को +1 हो जाएगा, 27 को +2 हो जाएगा, 28 बिकॉज इट्स अ लीप ईयर +4 हो जाएगा, 29 को +5 हो जाएगा, 30 +6 हो जाएगा, 31 +7 हो जाएगा, एंड दैट इज वाई दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PQRNS भी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट बताया है, पॉजिटिव बताया, देखो ये कीवर्ड्स हमेशा अंडरलाइन करनी चाहिए। ये अगर नॉन डिस्टिंक्ट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, या नॉन नेगेटिव बोला है तो मतलब 0 भी हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सो PQB ऑड एंड RS भी इवन, ऑल राइट। सो P - R², सो PQ इज ऑड, तो P ऑड है, ये इवन है, तो P - R ऑड हो गया, ऑड इंटू ऑड ऑड हो गया, इंटू Q इंटू से एक्चुअली S इवन है तो ये पूरा इवन ही हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी S इवन है तो ये पूरा इवन हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। P+S इज ऑड, क्यों, ये ऑड है, ये इवन है, ऑड इवन का सम करते हैं तो ऑड होता है। सिमिलरली ये ऑड है, ये इवन है, इन दोनों का सम ऑड होता है, ऑड स्क्वायर 3 ऑड नंबर का मल्टीपल है तो वो ऑड ही होगा। सो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फाइनली मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स। देखो मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द पेपर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि अगर आप क्लैरिटी है हर कॉन्सेप्ट की, ये आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इनको। अभी तक मैंने कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं किया है, ऑब्वियसली मेरे को कॉन्सेप्ट पहले से पता है, आई हैव क्लैरिटी ओवर दिस कॉन्सेप्ट एंड आई हैव द राइट अप्रोच, सो दैट इज वाई इट्स पॉसिबल फॉर मी, मैं इस तरह कर सकूँ। ओके, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड।
Yeah. So 3 4 ये 4 बचा है, बट इसने क्या बोला है 425। तो जब ये वाली इधर हो जाएगी तो ये आर वाला थोड़ा आगे आ जाएगा। तो इसमें ना, ओके, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट यू नीड टू नो। आपको पता है पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। एंड ओके, तो 1 घंटे में जो मिनट हैंड है, ये जो लंबी लाइन है, ये 360 डिग्रीज घूमता है। तो 25 मिनट में कितना घूमेगा? इन 25 मिनट दिस विल बी 360/60 इंटू 25। सो ये 6 हो गया, तो मतलब 150 डिग्रीज। तो ये जो है, अगर हम यहाँ से एंगल मेजर करें तो यहाँ पे हम हैं 150 डिग्रीज पर। सिमिलरली जो आर हैंड है वो तो यहाँ से यहाँ ही मूव करता है ना। तो ये 12, तो पूरे सर्कल में 360 डिग्री हैं। तो मतलब ये जो 12, इसको 12 से डिवाइड करें तो 360/12 कितना होता है? 30 डिग्रीज। तो आर हैंड जो होता है वो 1 घंटे में 360/12 इक्वल टू 30 डिग्रीज घूमता है। तो मतलब 25 मिनट में कितना घूमेगा वो? 30 डिग्री/60 डिग्री इंटू 25, ये 1/2 हो गया, 12.5 डिग्री। तो ये पहले कितने पे था? सो ये हमने बताया ना कि ओके, यहाँ से यहाँ 30 30 30 120, ये 120 था, ये यहाँ पहुँच गया 132.5, क्योंकि हमने इसमें 12.5 ऐड कर दिया, दोनों का डिफरेंस हो गया 17.5, तो इसलिए आंसर है। इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आपको पता होना चाहिए एंगल्स के बारे में, क्लॉक्स के बारे में, आर हैंड कितना मूव करता है, मिनट हैंड कितना मूव करता है। सो जस्ट टू शो यू, मैंने 6 क्वेश्चन किए हैं, ऑलराइट, जब मैंने टाइमर स्टार्ट किया। टेक्निकली आई हैव 9 मिनट्स, बिकॉज 1.5 मिनट मिलता है हर सवाल के लिए। आई हैव डन दैट, आई ऑल्सो एक्सप्लेन इट, तो पॉसिबल है। मूविंग ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस। आई एम नॉट गोना डू आरसीज फॉर दिस वीडियो। लेट मी डू सम इंटरेस्टिंग वंस, कुछ मिले। चलो एक सीक्वेंस वाला कर लेते हैं। लेट मी राइट दिस अगेन। ये ऐसे था, BCD B BCD ABCD देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, सबसे पहले माई फीलिंग इज, आई ऑलवेज थिंक कि यार ये क्वेश्चन बना है तो सॉल्व होने के लिए बना है। इन्होंने ऐसे कोई, बिकॉज यू नो देयर इज अ फीलिंग, मतलब नेचुरली कभी कभी ऐसा कोई पैटर्न आ जाता है कि आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, बट कभी कभी ऐसा पैटर्न आ जाता है वेर वी फील कि आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस। बट रिमेंबर कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बने हैं, सो एक पैटर्न तो एग्जिस्ट करेगा। एंड मैथ्स में ना हमेशा दिस टू थिंग्स आर कॉमन इन ऑल दीज पैटर्न्स, या तो सिमेट्री होगी, मतलब इधर से उधर से देखोगे दोनों सेम दिखेगा। जैसे अगर ABCD CBA इस टाइप की चीज़ें हैं तो सिमेट्री है, नहीं तो कुछ वेव आती है, वेव्स एंड सिमेट्रीज। वेव का मतलब क्या है? कुछ एक चीज़ है जो फ्लो कर रही है थ्रू द पैटर्न। जैसे कोई आपके पास अलग अलग कलर के बीड्स हैं, तो मतलब यू नो व्हाट अ वेव इज। सो इस केस में इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि A-BCD, पहले तो हमको ये समझ आ रहा है कि ना A to D वाले लेटर्स यूज हो रहे हैं। लेटर्स कौन से यूज हो रहे हैं? A to D। ई कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, तो ई तो नहीं है। एंड A to D जो चीज़ है वो रिपीट हो रही है। तो A से D के लेटर्स लिखे जा रहे हैं और वो रिपीट हो रहे हैं, और जब वो रिपीट होते हैं तो कुछ अलग होता है उसमें। दैट इज इंट्यूशन। तो पहले हमने ये लिख दिया, तो या तो ये डी होगा, अगर ये डी होगा तो वापस ए नहीं आ पाएगा, तो गलत है। तो ये एक्चुअली ए ही होना चाहिए, बिकॉज हमने बोला कि रिपीट होना चाहिए, राइट। सो A B B C D ये सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाला क्या है? ABC-D, और लास्ट वाला क्या है? ABC-D। तो यहाँ पे A B B आ गया। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ओके, पहले तो सेकेंड वाला ए होना चाहिए, सो ओनली दीज टू ऑप्शंस आर पॉसिबल, एंड फर्स्ट वाला भी ए है। एंड नाउ आई कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि देखो कभी कभी स्ट्राइक कर जाता है, कभी कभी नहीं भी करता, कि पहले यहाँ 2 A आ रहे हैं, यहाँ 2 B आ रहे हैं, तो शायद अब 2 C आएंगे एंड 2 D आएंगे। एंड आप इन दोनों को ऑप्शंस को देख के भी समझ सकते थे। सो दिस नीड्स टू बी कवर्ड सेपरेटली।
ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स देख के ना तब एक थोड़ा इंट्यूशन बनता है. इट्स पॉसिबल कि पहली बार आप ऐसे पैटर्न देख रहे हो तो ना हो पाए. ओके, सो लेट मी डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. टू पर्सन्स पी एंड क्यू एंटर इनटू बिजनेस. देखो ऐसी लैंग्वेज को ना हमेशा सबसे पहले वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दो. पी पुट्स 14,000 मोर देन क्यू. ओके, ये क्या है? उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है. पी हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 months. ओके, पी हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 months, क्यू हैज इन्वेस्टेड फॉर 10 months. इसका क्या मतलब है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर प्रॉफिट. ओके, ठीक है, इन्वेस्ट करते हो तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है. सो लेट्स से ओके वी हैव टू एज्यूम कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर. पी इंटू आर डॉट 8, ये पी का इन्वेस्टमेंट हो गया. क्यू डॉट आर डॉट 10. ठीक है. इफ पीज शेयर इज 400 मोर देन क्यू. एक मिनट, शेयर की बात हो रही है. ऑल राइट, लेट मी जस्ट डू दिस सेपरेटली. ये बोला था P इज इक्वल टू क्यू प्लस 14,000. P का इन्वेस्टमेंट बोला है 8 महीने का. Q का है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वुड से बिकॉज द लैंग्वेज इज लिटिल वियर्ड. टोटल प्रॉफिट ऑफ 2,000. ओके, टोटल प्रॉफिट 2,000 है. ये क्या प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ओके, जो इन्वेस्टमेंट होती है वही प्रॉफिट होता है. बिकॉज क्या आपने कुछ इन्वेस्ट किया पैसा, उसके ऊपर कितना बना, कितने रिटर्न्स आए, सो दैट इज द प्रॉफिट. ये चीज़ बताई गई है. एंड एक और चीज़ बताई गई है कि पी का शेयर जो है 400 ज़्यादा है क्यू से. सो ये जो है, दिस इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन. सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन सी साइड. आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हेन टू लीव अ क्वेश्चन. प्रोबेबली दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन लेफ्ट, और मे बी उस टाइम मेरे को जल्दी स्ट्राइक कर रही होगा जब मैंने एक्चुअली एग्जाम दिया था. तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा PR8. देखो इसमें आर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जब तीन इक्वेशन हो जाती हैं और तीन वेरिएबल्स हैं तो वी कैन एलिमिनेट दी, वी आर एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन. ये तो पता होना चाहिए. सो इंटू टू, सॉरी, ये इंटू टू, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा. क्यू इंटू आर इंटू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 1600. अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा ना, तो 2400/1600 मतलब 24/16 इज इक्वल टू, ये दो दो इन ये कट जाएगा, आर कट जाएगा. P इंटू 8, Q इंटू 10. इसको 8 से डिवाइड किया तो 3/2, यहाँ 5. सो Q इज इक्वल टू P इंटू 8/15. ये 15 आ गया है. इसको पहली इक्वेशन में डालेंगे तो P इज इक्वल टू P.8/15 प्लस 14,000. इसको उधर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7/15 इंटू P इज इक्वल टू 14,000. एंड ये 2 गया, और ये 15, ये 30 हो गया. तो 30,000 इज द अमाउंट ऑफ, और ये P का ही पूछा था ना, सो दैट इज द आंसर. इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, आई एग्री. छोड़ा जाने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली. ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली मैंने एनालाइज किए थे रिसेंटली सारे क्वेश्चन पिछले 12 साल के. सो इन द लास्ट 3 years ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं विच आर रियली नॉट डूएबल. आई मीन दे आर डूएबल बट दे आर नॉट डूएबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पेपर जहाँ टाइम कम होता है, रफ स्पेस लिमिटेड होता है. एनीवेज, पी की सैलरी 20% लोअर है. सिंपल सी बात है, इसको ना हमेशा मैं ऐसे लिख देता हूँ. परसेंटेज को बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का ये सा. दिस इज वॉट आई बिलीव. ओके, विच इज़ 20% लोअर देन आर की सैलरी. ये एक्चुअली है क्या? क्यू खुद में 0.8 ऑफ आर है. ऑल राइट, सो ये 8 इंटू 8 64 आर हो गया. तो ये क्या हो गया? 36% कम हो गया पी. राइट. ओके, बट पूछा है कि आर की सैलरी कितनी ज़्यादा है. ठीक है, तो ऐसे उल्टा कर लेते हैं. P इज इक्वल टू P अपॉन 1/0.64, तो ये 100/64. इसको 4 से करेंगे तो 25/16. 25/16 कितना है? 9. सो 0.580 10. ये थोड़ा रफर कैसा है मेरा भी. ओके, 10 इंटू 100 हो गया 6. तो 1.56 ऑफ P, मतलब 56% ज़्यादा है. दैट इज आंसर. फॉर्चुनेटली इसमें ऑप्शंस थोड़े से दूर दूर थे तो यू कैन अंडरस्टैंड. ये एक और परसेंट है. लेट मी डू समथिंग एल्स. लेट मी दिस डू दिस क्वेश्चन.
ये वेन डायग्राम वाला लग रहा है। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, ठीक है। 70% स्टूडेंट पास इन हिंदी, 15% दोनों में फेल हो गए थे। वॉट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? ओके, ओके, सो वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफक नहीं दिख रहा है बिकॉज मैं जनरली एक्चुअल पेपर में पीछे की तरफ रफक करता हूँ। सो इसमें लेट में क्या पूछा, देखो इसको ना वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इंग्लिश वाला है, एक हिंदी वाला है, एक इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला है, मेरे को काउंट करने हैं। तो मैं उनको बोलूंगा कि यार सारे इंग्लिश वाले ना इधर खड़े हो जाओ, सारे इंग्लिश वाले इधर खड़े हुए हैं, एंड ये इंग्लिश वाले हैं एंड हिंदी वाले भी इधर हैं, एंड जो दोनों में कॉमन है वो बीच में खड़े हुए हैं। आई मीन दैट इज अ विजुअलाइजेशन। कर सकते हो ना, लेट्स से यू हैव एक्चुअल रियल पीपल, यू कैन टेल देम टू स्टैंड लाइक दिस। अब क्या बोला है कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। ये जो पूरा सर्कल है इंग्लिश में है 80। अगर 100 बच्चे मान लेते हैं हम टोटल, हाँ 100 बच्चे टोटल मान लेते हैं, एंड हिंदी के 70 दे रखे हैं, तो ये कॉमन हो गया। तो हमको पता होता है कि 80 प्लस 70 माइनस ये जो कॉमन एरिया है, इसको ई ऐसे लिखते हैं, ई इंटरसेक्शन एच। ये जिसको नहीं पता है मैं लेक्चर सीरीज में इसको कवर करूंगा। इज इक्वल टू इन दोनों का टोटल। अभी अच्छा टोटल भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और क्या बता रखा है हमको, 15% दोनों में फेल हो गए। तो 15% बच्चे हैं, तो ना तो इधर हैं वो ना इधर हैं, मतलब वो इन तीनों की इस पूरे एरिया में नहीं है, वो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो बेसिकली 15 बच्चे तो फेल ही हो गए दोनों में, तो ये इन दोनों का सम 85 होगा बेसिकली। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। ऑलराइट, तो 150 माइनस 85 इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एच। ये कितना हो गया 65। तो ये जो कॉमन एरिया है ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका 65। ऑलराइट, लेकिन 65 तो नहीं पूछा, पूछा क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? ऑलराइट, तो ये जो दोनों सर्कल के मिला के सारे बच्चे हैं वो 85 बच्चे हैं। 65 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, तो मतलब बाकी जो 20 बच्चे रह गए वो ऐसे हैं जो या तो एक इसमें या सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं या सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, आई विल से दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन बिकॉज हार्ड की डेफिनेशन वही है जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पैरेलल में अप्लाई होते हैं, या फिर लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है या टाइम कंज्यूमिंग होता है। एनी ऑफ दीज थिंग्स कैन मेक अ क्वेश्चन हार्ड बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन आसान भी हो सकता है, लाइक आई कैन टेल यू कि आई डोंट नो 1587 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 563 से। कंसेप्चुअली तो आसान ही है, तो बचपन में करते हैं, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेपर ये मुश्किल क्वेश्चन होता था, टाइम ज़्यादा लगता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फादर सेड टू हिज सन कि एनी ईयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू। लेट मी फादर की एज मान लो एफ मान लेते हैं, एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। इट मीन्स ये बोला जा रहा है मेरे फादर में से एन घटा दो तो एस की करंट एज हो जाएगी। माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज। माई प्रेजेंट एज इज, ठीक ये नहीं बोला है, माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू मतलब 4s माइनस 4n। और क्या बोला है कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 130 years। तो बेसिकली ये दोनों निकाल ले, एन को एलिमिनेट कर दो, तो इसमें क्या है, एफ इज इक्वल टू एस प्लस एन, ऑल्सो एफ इज इक्वल टू 4s माइनस 4n। ऊपर वाले को ना 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5f इज इक्वल टू 8s। ठीक है, तो मतलब s को मान लेते हैं, s इज इक्वल टू 5/8 ऑफ f। इस वाली इक्वेशन में डालो, f प्लस 5/8 ऑफ f इज इक्वल टू 130। इनको ऐड करते हैं तो क्या था, 13/8 f, मतलब f हो गया 80, s हो गया 50, क्योंकि दोनों का सम 130 है और दोनों का डिफरेंस हो गया 30। आंसर, सो आंसर इज A 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक ऑब्वियस वन क्वेश्चन, थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में ओके आई टुक 12 minutes, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में वेन डायग्राम वाले में थोड़ा सा टाइम लगा. एनीवेज, some questions will take a little more time. Previous set of questions थोड़ा जल्दी हो गए थे, but again doable. With some practice आपको ये भी पता चल जाएगा which question can be left out. You can actually look at a question and immediately identify कि इसमें क्या concept use हो रहे हैं. Let me move on to the next question. So okay, ये वाला question है, let's say इसको. अब इसमें सिंपल से क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल. ओके, ये वाला नंबर, ये जो कॉम्बिनेशन है किससे डिविजिबल होता है. सो देखो, सबसे पहले ना सिंप्लीफाई करते हैं. मतलब मेरा इंट्यूशन ये रहता है कि ये दोनों सेम से लग रहे हैं. ऑब्वियसली सिमिलैरिटी है ना कुछ. एक्चुअली ये 222 क्या है, 2 × 111 अपॉन इसकी पावर 333 प्लस, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 111 पावर 222. ऑब्वियसली 111 को हम कॉमन ले सकते हैं. कॉमन भी क्या है, ठीक है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों पावर्स अलग हैं. बट अल्टीमेटली ये नंबर में भी बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं 111 के, इसमें भी आ रहे हैं. तो ये पूरा नंबर जो होगा ये 111 से डिविजिबल होगा. एंड 111 कुछ नहीं है, इट्स 37 × 3. ये मेरे को याद था बिकॉज ये वाला नंबर मैं पहले देख चुका हूँ. सो ये जो दोनों का सम होगा ये डेफिनेटली 3 और 37 से डिविजिबल तो होगा. सो जहाँ नॉट 37 और नॉट 3 लिखा है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है ट्रू. तो इन दोनों से आंसर है. क्या ये 2 से डिविजिबल है यार? इमीडिएटली आई कैन सी ये पहला नंबर तो इवन है, दूसरा नंबर ऑड है. ऑड नंबर क्यों है? बिकॉज 333 इज ऑड, और ऑड को कितनी बार भी आप ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा ऑड आएगा. तो इन दोनों का सम जो होगा ऑड प्लस इवन इज ऑड, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. दैट इज व्हाई आंसर इज 2. एनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. what percent of what percent of water must be mixed with honey so as to gain 20%? अच्छा, मेरे पास पानी नहीं, मेरे पास हनी है कुछ, उसमें मैंने पानी डाल दिया और मैं 20% प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ. आई थिंक ये तो थोड़ा ऑब्वियस से लग रहा है. मिलावट कितनी करोगे? मेरे पास शुद्ध हनी है, मैं उसमें कितना पानी मिलाऊं ताकि मैं उसको 20% ज़्यादा पे बेच सकूं. मतलब मैं बोलूँगा कि शुद्ध ही है अभी भी. सो 20% का मिलावट करूँगा तो 20% का फायदा. ऑलराइट, what is the rightmost digit preceding the zeros in the values of 30/30? इसको थोड़ा सा अलग से मैं दिखा देता हूँ. 30/30 है ना, ये एक्चुअली क्या है? 3 × 10⁻30. कितने नंबर ऑफ जीरोस पूछा है क्या? नहीं नहीं, राइट मोस्ट डिजिट प्रेसीडिंग द जीरोस. ओके, सो ये 3/30 × 10⁻30, और ये एक्चुअली है क्या? ये तो मतलब 0 0 ऐसे 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 30 बार जीरो आएंगे. तो ये तो 30 जीरोस आएंगे, और इस वाले में जीरो नहीं आएगा. इसका जो यूनिट डिजिट होगा, बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि 3/30 का यूनिट डिजिट क्या है. तो ओके, इसका थोड़ा रीजनिंग की ऐसा, चलो मैं इसका बता देता हूँ इसका तरीका क्या होता है. बट इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम टू एक्सप्लेन कि ऐसा ट्रू क्यों होता है. बट बेसिकली क्या होता है कि जैसे 3 है, 3 स्क्वायर कितना होता है? 9. 3 क्यूब कितना होता है? 27. 3 4 कितना होता है? 81. ऑलराइट, तो अगर 3/4 का जो यूनिट डिजिट है वो 81 है, एंड अगेन ऑब्वियसली एक और 3/4 है, उसका यूनिट डिजिट 81 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 1 ही होता है. बेसिकली इन दोनों का यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है. ऑलराइट, बिकॉज समझिए ना, इन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इधर कुछ भी नंबर आए यहाँ पे तो 1 ही आएगा. राइट, ऐसा आता है ना, इधर तो 1 ही आएगा और उनको तो सिर्फ यूनिट डिजिट में इंटरेस्ट है. सो दैट इज वाई दिस हैपेंस. सो 3/30 को मैं ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि हर 4 बार बनाता है. 3/4 × 3/4 ऐसे 3/4, ये 4 4 मतलब 7 बार आएंगे. इसको ऐसे लिख दो. ये 28 × 3², तो क्या हो गया? ये तो 9 आता है, एंड ये हमको पता है इनका यूनिट डिजिट क्या इतना आएगा? 1 ही आएगा बिकॉज 1 1 1 आता है. तो इसका फाइनल यूनिट डिजिट 9 आता है. इफ दिस इज नॉट थोड़ा अंडरस्टैंडेबल, इसको अलग से समझाना पड़ेगा बाद में.
for this video in particular, थोड़ा scope I cannot, इतना time नहीं आएगा, I don't have that much time, but I can explain this in a later video कि why this happens. So इसका आंसर 9 इसलिए आता है. एक और क्वेश्चन पूछा है कि 420, 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. Okay. How many numbers can be used as a divisor in order to get the same remainder 1? All right. So 421 जो है, अगर मैं इसको किसी लेट्स से n है नंबर जो हमारा डिवाइजर है, n इंटू सम q नंबर होगा, क्वोशिएंट जो होता है उसका रिमाइंडर 1 आता है. 427 जो है उसका, देखो मैं इसमें मेरी अप्रोच क्या है, ये जो लिखा है ना इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. जब इक्वेशन आ जाती है हम इक्वेशन पे काम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है. इसको मान लो q डैश मान लो, इसमें भी 1 आता है, ये बोला गया है. तो डायरेक्टली मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आया, 6 इज इक्वल टू n इंटू क्यू डैश माइनस क्यू. अब मैं इसको फैक्टराइज करके देख सकता हूँ. अब इसने क्या बोला कि दो नंबर का मल्टीपल है, दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6. तो ये कब कब हो सकता है, 6 इंटू 1, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, 1 इंटू 6. तो n 6 हो सकता है और ये दोनों का 1 डिफरेंस होगा. n 3 हो सकता है, n 2 भी हो सकता है, n 1 नहीं होगा, बिकॉज अगर n 1 हो गया तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा. सो ये तीन ऑप्शन आ सकते हैं n के. दैट इज द आंसर. आप ट्राई भी कर सकते हो कि n 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. एंड ये जो दो नंबर हैं, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों में 1 रिमाइंडर आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो भी 1 रिमाइंडर आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो भी 1 रिमाइंडर आएगा. ऑल राइट, moving on to some other question. Okay, X contains 399 liters of petrol. I think ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लग रहा है कुछ, इसको छोड़ते हैं. मतलब उसमें भी कुछ फैक्टराइजेशन होगा. Consider the following statements in respect to the sum x equal to x plus y plus z. Okay, ये दिया है x plus y आर डिस्टिंक्ट हैं और प्राइम नंबर्स हैं, तीनों 10 से कम है. ऐसे में ना, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें कुछ कंडीशन कंस्ट्रेंट दे रखा होता है कि ये जो नंबर है ना इसकी कोई कंडीशन है, ये इतने ही हो सकते हैं. तो लिख लेते हैं सारे प्राइम नंबर्स जो 10 से कम है, एक्चुअली यही है, तो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. अब हमें तीन डिस्टिंक्ट लेने हैं और तीनों का सम लेना है. ये बोला है s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. कोई भी हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो मैं 2 3 5 ले सकता हूँ, 2 3 7 ले सकता हूँ. सो तो इसको ना ऐसे सारे कॉम्बिनेशन लिखने का एक तरीका होता है कि आप पहले पहला नंबर फिक्स कर दो, दूसरा नंबर फिक्स कर दो, फिर कॉम्बिनेशन देख लिए. अब पहले दो नंबर फिक्स करके और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर 3 को हटा देते हैं, 3 को फिक्स नहीं रखते हैं, 3 को हम लेते ही नहीं है बेसिकली. 3 वाले ऑप्शन, 2 और 3 वाले कॉम्बिनेशन हमने ले लिए. 257 हो गया, ठीक है. फिर फाइनली फिर एक और कॉम्बिनेशन आएगा 357. ठीक है, यही चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. इसमें सम क्या आता है 10, इसमें सम क्या आता है 12, इसमें सम क्या आता है 14, इसमें सम क्या आता है 15. यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0, सही बात है पहले वाले से. यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत बात है. यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, ये भी सही बात है. तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है. दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो लेट मी डू अ फ्यू मोर क्वेश्चन. थोड़े मैं अच्छे वाले थोड़े मुश्किल सवाल देखता हूँ. कि ये भी अच्छा सवाल है. लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस. ये थोड़े से डिफिकल्ट, आई कंसिडर दीज आर लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ये क्यूब के विजुलाइजेशन होते हैं ना, लाइक क्यूब को 64 आइडेंटिकल पीसेस में काटना है. एक क्यूब होता है ये क्यूब हो गया हमारा. ठीक है, इसको पूरे मान. ऑलराइट,
अब इसको क्या बोला है कि ये देखो क्यूब कितनी भी लेंथ हो सकती है इसकी, 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में बोलना है। तो 64 हमको पता है, लाइक ये थोड़े से ना आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, मतलब ये 4, फिर 9, फिर 16, 25, और क्यूब्स कौन कौन से होते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। सो ये बोलना चाह रहा है कि इसको आइडेंटिकल क्यूब में काटा है। सो दिस क्वेश्चन कोड हैव बीन ट्रिकियर। अगर ऐसा पूछते कि ये क्यूबॉइड है, मान लो ये क्यूब नहीं है, ये ना कुछ क्यूबॉइड है, इसके कुछ लेंथ वेंथ दे रखे हैं हमको, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, उसको कुछ पीसेस में काटे हैं और वो पीसेस भी आइडेंटिकल नहीं है, तो दोज आर ट्रिकी क्वेश्चंस। उसका भी एक इंट्यूशन होता है, वो बाद में समझाता हूँ मैं कभी, अगर इन द वीडियो सीरीज आई विल एक्सप्लेन दैट। नाउ फॉर दिस, ओके, तो मतलब मैं इसको अगर मैं ऊपर से देखूं, तो अगर मैं इसको ऐसा कुछ बना दूं, ऑलराइट, और हर तरफ से अगर ये ऐसा हो जाए, तो मतलब ये हर साइड जो है, मतलब इसको हर साइड को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। सो इवेंचुअली जो क्यूब्स कटेंगे, दैट विल बी लाइक 4 into 4 into 4, 64 आइडेंटिकल क्यूब्स। अब इसको, इस लाइन को 4 में बांटने के लिए मेरे को 3 कट करने पड़ेंगे। लेट्स से आई हैव अ नाइफ, तो मैं इसको ऐसे 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 3 बार ऐसे स्लाइस करूंगा, फिर 3 बार सामने से ऐसे 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 स्लाइस करूंगा, 3 बार ऐसे करूंगा, तो फाइनली मेरे को सारे ऐसे 64 आइडेंटिकल क्यूब्स मिल जाएंगे। सो दैट इज इंट्यूशन। तो ये 60, सो 3 + 3 + 3 ऐसे 9 कट्स मेरे को बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज द आंसर है। मूविंग ऑन टू सम अदर क्वेश्चन। ओके, सो आई टेक दिस वीडियो टू 1 hour, दैट इज द प्लान। उसमें आई ट्राई टू मेक श्योर कि हर वैरायटी के क्वेश्चंस हो जाए। काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, एंड इन एवरी केस आई विल जस्ट से कि नथिंग फैंसी इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर, क्लैरिटी। बस क्वेश्चन देख के आपको अप्रोच आपको पता हो कैसे अप्रोच करना है, इक्वेशन जो लैंग्वेज है मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है, एंड देन सॉल्व करना है। यही कॉमन चीज़ें होती हैं, एंड हरी पैनिक नहीं करना है। सिट, थिंक थ्रू, वंस यू नो द अप्रोच देन इट इज डूएबल। वंस यू डोंट नो द अप्रोच, आप पूरा पेज ही भर देंगे तो it will just, you'll not find the solution. Next question. Okay, I don't want to do this because शायद मैंने इसमें आंसर सॉल्व कर ही रखा है, then like पूरा ही आंसर सॉल्व कर रखा है, उसमें दिख रहा है। ठीक है, a certain number of men can complete. So I am not doing all the questions right now, but the plan is कि in the CSAT lecture series जो मैं निकालूंगा, उसमें every question from 2014 से 2025 तक either will be directly covered or they will be given in an assignment, है ना। उस असाइनमेंट की सॉल्यूशंस फिर मैं बाद में दूंगा, लाइक आई विल सॉल्व देम। सो इवेंचुअली ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। सो अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। सो इसमें वर्क को ना मैं हमेशा W लिख देता हूँ, कुछ लोग इसको 1 लिख देते हैं, कुछ लोग, देर आर कपल ऑफ अप्रोचेज हेयर, मैं आई एम कंफर्टेबल विद दिस। तो वर्क कितना है, 6 के डेज में मैन हैं, कितने नंबर ऑफ मैन है ये नहीं बताया, उसको मान लेते हैं, n मान लेते हैं, कैपिटल N। By what percent should the number of men be increased so that work can be completed in 6 days, 5 के days? So यही चीज जो है, अगर 5 के डेज हैं, देखो m क्या है, इट्स एक इंसान कितना काम कर पाता है, जो भी वो नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी, दैट इज m। सो ये तो हमने वैल्यू तो चेंज नहीं की, बस ये चेंज कर दिया, इसको मान लो कैपिटल M बना दिया। सो अब ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो मतलब m जो है is equal to 6/5 of n is equal to 1.2 of n, मतलब हमने 20% आदमी बढ़ा दिए, दैट इज आंसर। एक और वर्क का क्वेश्चन आ चुका है। ओके, थोड़ा सा मेरे को याद आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला था। सो XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 hours, 8 hours एंड 8 hours रिस्पेक्टिवली। लिख देते हैं इसको, W कुछ वर्क है इज इक्वल टू X इंटू 6 घंटे इज इक्वल टू Y इंटू 8 घंटे इज इक्वल टू Z इंटू 8 घंटे। एक टाइम में
एक ही पर्सन काम करेगा. Nobody can work for 2 consecutive hours. Okay, all are engaged to finish the work. तो देखो x क्या होता है, W/6. सिमिलरली y इक्वल टू z इज इक्वल टू W/8. तो क्लियरली ये ना अराउंड 16% कुछ होता है, ये अराउंड ये एग्जैक्टली 12.5% होता है, ये 16.6% होता है. एक्चुअली 16.6% होता है. तो x बड़ा है ऑब्वियसली. नाउ एक टाइम एक इंसान काम करेगा, कोई भी दो लगातार घंटे काम नहीं करेगा. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क दे विल टेक. तो बेसिकली क्या होगा, हम पहले x को काम पे लगा देंगे, फिर y को काम पे लगा देंगे, फिर z को काम पे लगा देंगे. नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे, हम वापस x को लगाएंगे, बिकॉज हमको मैक्सिमाइज करना है अपना काम, जल्दी से जल्दी करना है ना. x x सबसे ज्यादा काम करता है एक घंटे में, बट वो 2 बार नहीं कर सकता लगातार. तो y और z तो बराबर ही काम करते हैं, ठीक है, सो दैट डज नॉट मैटर. तो 6 घंटे तो लगेगा ही ऐसा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं. तो इसका अब तक कितना काम हो गया, 16%. सो ओके, 3x प्लस 2y प्लस z. तो ये तो 12.5% एग्जैक्ट होता है. सो दिस इज लाइक 37.5%. 3 × x कितना हो गया, x इज इक्वल टू W/6. तो 3x हो गया, W/2, ये 50% हो गया. सो ये हो गया 87.5% काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है 6 घंटे में, इन 6 hours. सो 45 मिनट्स. ओके ठीक है, मतलब लेट्स से मैंने ऑप्शन अभी तो दिख गया था मेरे को, बट लेट्स से 87.5 आवर्स तो हो चुका है. तो वापस से एक्स को लगाएंगे, जल्दी से जल्दी करना. और एक्स अगर 1 घंटे में मेरे को पता है 16% कुछ काम करता है, तो 12% काम करने के लिए इट्स लाइक 3/4 ऑफ दिस इज समाउ. मतलब इसको एग्जैक्ट आपको करना होगा, तो मतलब इसको एग्जैक्ट ऐसे कर सकते हैं, कितना काम बचा है. अगर आपको ये ऐसे होगा, ये इतना काम बचा है 6 घंटे बाद, मतलब W/8 काम बचा है, राइट. इतना काम बचा हुआ है. 1 घंटे में आप कर सकते हो वाई और जेड से, तो 7 घंटे लगेगा. नहीं तो अगर x की वैल्यू W/6 है इंटू n, तो n इज इक्वल टू 3/4 घंटा, मतलब 45 मिनट्स. तो वहां से आता है. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें ना न्यूमेरिक मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. सो आई वुड से दिस ऑल्सो वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन. हार्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में डुएबल है कि नहीं. Now, next question, how many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product? Okay, this question में. So, consecutive zeros मतलब कितनी बार, लाइक 10 के कितने फैक्टर्स हैं. इसको मैं प्राइम फैक्टराइज करूं, इसमें कुछ 2 आएगा, कुछ 2 के मल्टीपल्स आएंगे, कुछ 5 के मल्टीपल्स, 5 के फैक्टर्स आएंगे, 2 के 5 के फैक्टर्स आएंगे, 2 के फैक्टर्स आएंगे. क्योंकि 2 के फैक्टर्स जनरली ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब 2 के फैक्टर्स कैसे कैसे आएंगे, 4 × 8, 6 × 12, तो 2 के तो फैक्टर्स बहुत सारे आएंगे. 5 के फैक्टर्स कौन से आते हैं 5, 10, 10⁻20, ऐसे ही पैटर्न है ना. 15⁻30, 20⁻40, 25⁻50. तो 5 के फैक्टर्स कितने आएंगे, 10 + 20 + 30 + 40 + 50. पर क्योंकि ये 25 अपने आप में 5 × 5 होता है, तो +50 एक और बार आएगा. तो कितना हो गया, 100, 140, 170, 200. तो इसके फैक्टराइजेशन में ना अल्टीमेटली आप जब लिखोगे, 2 × सम पावर आएगी, 3 × सम पावर आएगी, और 5 की पावर 200 आएगा. एंड अगर हम एज्यूम कर ही लेते हैं, मतलब इट्स नेचुरल टू एज्यूम कि जो 2 के पावर्स हैं वो 200 से ज़्यादा ही होंगी. सो अल्टीमेटली इसमें 200 जीरोस आएंगे. दैट इज इंट्यूशन है. Okay, this little simple सही है वाले question. Let me do some other question. Again, all of these questions will be covered later. Just want to. Okay, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मेरा एक्चुअली गलत हुआ था. Yeah. So ये क्वेश्चन था कि a main statement is followed by 4 statements, P, Q, R, S. Okay, ordered pair of the statements with the first statement implies the second. ठीक है. 2 statements are logically consistent. तो हमको ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं. चूज अ ऑर्डर्ड पेयर.
ओके, सो इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है बिकॉज आई थिंक इस पैटर्न का क्वेश्चन लाइक इस एग्जैक्ट पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े कम है. लाइक आई हैव नॉट सीन एनी अदर वेयर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट पूछा है. बट ओके, ये एस पी आर क्यू आई मीन दीज आर ऑर्डर्ड स्टेटमेंट्स. ये दोनों कंसिस्टेंट होने चाहिए मेन स्टेटमेंट से. सो दिस इज द मेन स्टेटमेंट कि प्रदीप जो है या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा. सो पी क्या बोलता है, प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर. ओके, ऑर्डर्ड स्टेटमेंट देखना ना, तो एसपी का मतलब क्या है कि प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है, प्रदीप डायरेक्टर है. और ये बात सही है बिकॉज हमको बोला गया कि प्रदीप बिकम्स ईदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर. अगर प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है तो वो डायरेक्टर है, तो ये तो बात सही है. ओके, एंड आर क्यू क्या बोला है कि प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर एंड प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर. सो ये बात भी सही है क्योंकि हमको बोला है कि उन दोनों में से एक होगा. तो अगर पहला नहीं है तो मतलब दूसरा होगा. सो आर क्यू भी सही है. सो एक्चुअली इसका आंसर इज सी. एंड अपेरेंटली आई डोंट नो, मतलब एग्जाम टाइम में मैंने जल्दबाजी में आर क्यू देख के सही किया होगा. सो दिस इज वाई शुड रीड द ऑप्शंस प्रॉपर्ली. कि इसमें क्या बोला है कि ए प्लस बी माइनस मीन्स ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस, ठीक है ठीक है, प्लस बी, तो दो दो बार प्लस बी आ गया ना. सेकेंड, ये कुछ ओके, यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि ये डिवीजन हो रहा है, ए इंटू बी का डिवीजन, और ठीक है. ओके, और ये फाइनल वाला भी डिवीजन, तो यहीं से कर लेते हैं. सो सो प्लस को क्या करना है, माइनस करना है. माइनस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई को डिवीजन करना है. और फाइनल डिवीजन को प्लस करना है. ये ही हमको आंसर करना है. तो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड करते हैं. तो 10 - 30 × 2 प्लस 25, ये हमने डिवाइड कर दिया. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा, -60. सो 10 - 60 -50 प्लस 25, तो -25 इज आंसर. या दैट इज आंसर. ओके, दिस लुक्स लिटिल, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें. सो पी, ओके, दीज क्वेश्चंस में ना सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट रीड द क्वेश्चन. वैसे आई थिंक आसान ही होते हैं. अब देखो इसमें पी क्यू आर एस टी के अलग अलग मीनिंग दे रखे हैं एंड स्टेटमेंट बता रखा है. तो 2x एस, एस क्या है, नॉट लेस देन. नॉट लेस देन का एक और मतलब होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू. ओके, ये इससे छोटा नहीं है, तो या तो इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, बट छोटा नहीं हो सकता. तो यही बोला जा रहा है. 3x टी, टी क्या लिखा है, इक्वल टू 4z. ये दोनों स्टेटमेंट दे रखी हैं. देन क्या बोला है, 9y p 8z. तो इसको कर लेते हैं. अगर 3x जो है, ओके, x क्या है, x मतलब 4/3z है. इसको पहले स्टेटमेंट में डालो, 2 × 4/3z. 8/3z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3y, या फिर 8z इज इक्वल टू 9y. एंड ये तो उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा है इसका. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. अब इसमें क्या बोला है कि x क्यूब 2y. अब q क्या है, लेस देन. x 2y से छोटा है, y rz. सो ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू से इज कि इनइक्वालिटीज जो होती है ना, आई मीन दीज आर समटाइम्स नॉट वेरी इंट्यूटिव टू पीपल, विच आई अंडरस्टैंड. इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज वगैरह समझने होते हैं. हाउ यू कैन प्ले विद मल्टीपल इनइक्वालिटीज एंड व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, क्या कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, दैट आई विल ऑल्सो कवर. सो x इज लेस देन 2y दे रखा है, एंड y rz. r इज नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू z. इसको देखो, y z है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऐसे हो जाएगा. और x उससे छोटा बता ही रखा है. तो ये तो हमको पता चल रहा है पहली दो स्टेटमेंट से. तीसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि मतलब तीसरे जो क्लॉज दे रखा है, x r z, r इज नॉट ग्रेटर देन, राइट. तो इसका मतलब ये होता है
जो भी ट्रू नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 होना था, x इज लेस देन 2y लेस देन इक्वल टू 2z, इससे हम स्ट्रेट अवे ये नहीं बोल सकते कि ये z है। फॉर एग्जाम्पल, अगर x, अगर तीनों वन, लेट्स से तीनों वन है, या x y z तीनों वन है, तो x इज लेस देन 2 into 1, राइट, बिकॉज 1 इज लेस देन, या 1 इज लेस देन 2, एंड 2y, y इज लेस देन इक्वल टू z, वो भी सही बात है। नहीं, इसको ऐसे ले लेते हैं, लेट इक्वल टू x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0.75, z इज इक्वल टू 0.75, तो ये सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, x इज लेस देन 2y बिकॉज x इज लेस देन 1.5, एंड y इज लेस देन इक्वल टू z, वो भी सही हो जाएगा। बट बट x विल नॉट बी लेस देन इक्वल टू z। इसमें एग्जाम्पल्स की जरूरत, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि समझ आ जाए, बट इवन विदाउट एन एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हो कि ऐसा पक्का ट्रू नहीं है। कंक्लूजन, इनइक्वालिटीज में कंक्लूजन डेफिनेट होनी चाहिए, मतलब आप बस मान नहीं सकते हो जब तक प्रूव नहीं हो रहा था अपने आप से, तब तक यू कैन नॉट सिंपली एज्यूम। सो दैट इज वाई दिस वन इज नॉट करेक्ट। आई मीन देयर विल बी सम एग्जांपल जिसमें ट्रू हो जाए, बट हर एग्जांपल में ट्रू नहीं होगा। दैट इज वाई ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए आंसर इज डी। ओके, जस्ट लेट मी टेक थ्री थ्री क्वेश्चंस मोर। या इसकी जरूरत नहीं है अभी। ए बी सी डी इज रिटन एज 24। देखो ऐसे ना क्वेश्चंस में सबसे पहले देखते हैं कि कोड जब भी होता है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंट्यूशन यही होता है कि ना इन लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट किया गया, या तो सिंपल डायरेक्टली, या कभी कभी ऐसा होता है कि z को 1 बोल देते हैं, y को 2 बोल देते हैं, लाइक सम रिवर्स समथिंग इज हैपनिंग। बट फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ट्राई इज दिस, एंड ABCD इज रिटन एज 24, एंड ऑब्वियसली 24 आई नो कि इन 4 नंबर का मल्टीपल होता है। सो एंड EFGH क्या है, 5 6 7 8। ओके, अगर ये चार, ओके, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 4 8 168 एक 0 1680। ये भी सही है, तो मतलब चारों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो IJKL अब सिंपल क्या हो गया, 9 10 11 12, इनका मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू 9 कितना हो गया, 99 इंटू 12, 12 इंटू 9 कितना होता है, 108, राइट राइट। फिर 12 108 118, और एक जीरो रह गया था, सो पहला वाला आंसर आ गया इससे। लेट मी जस्ट डू सम ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। इन सम कोड लेटर्स PQRST represent numbers 4 5 10 12 15। इसमें थोड़ी सी रफ स्पेस चाहिए मेरे को, तो हमको क्या बताया, PQRST, एंड नंबर क्या बताया है, 4 5 10 12 15। 4 5 10 12 15 ये बताया। Q माइनस इज इक्वल टू 2S, मतलब Q इज इक्वल टू 3S। ओके, एंड फाइनली क्या बताया, T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। और बताना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T। ओके ना, तो सबसे पहले मेरे को क्लू ये लग रहा है कि Q जो है S का 3 टाइम्स है, तो अगर S 4 है तो मतलब Q S की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अगर S 4 है तो ये 12 हो सकता है, ये S 15 है तो ये 15 ये 5 है तो ये 15 हो सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। और T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3, तो दो नंबर का सम और उसमें 3 और जोड़ दो, तो क्या क्या हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें ना ऐसे में क्या क्या नहीं हो सकता वो सोचते हैं। 12 और 15, R और S 12 15 अगर हो गए, सो दिस विल बी 27 प्लस 30। इतना बड़ा नंबर तो कोई है ही नहीं, तो ये छोटे छोटे ही हो सकते हैं। अगर R और S 4 और 5 हो गए, प्लस 3 9, तो 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12, तो T 12 हो सकता है, राइट। या फिर अगर R और S थोड़े से भी बड़े हो गए, लाइक 4 और 10 हो गया, या 5 और 10 हो गया, सो दिस नंबर विल बी टू मच, लाइक इट विल बी बिगर देन 15। सो एक्चुअली ये सिंपल ही हो गया, R और S की पॉसिबिलिटीज 4 या 5 होगा, या 5 या 4 ही होगा। T मतलब पक्का ही, फिर 12 हो जाएगा। अगर T 12 हो गया तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब Q 15 हो गया। एंड
Q15 हो गया एंड S5 हो गया, बच क्या गया, मतलब P10 बच गया, तो P+R-T, यही पूछा था ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P+R-T? ओके, एक मिनट, तो R कितना, 4 बच गया, राइट, या तो P+R-T, P कितना है, 12, 14 minus 12 is equal to 2, so that is the answer. There are a lot more interesting questions इस और पेपर में, डेफिनेटली हर साल काफ़ी सारे सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है, टू बी ऑनेस्ट. एंड सी, इस वीडियो का अप्रोच, इस वीडियो का पर्पस यही था कि ये क्वेश्चंस डुएबल हैं, कोई बहुत कुछ फैंसी नहीं है, मैं कोई भी फॉर्मूला कहीं यूज़ नहीं किया है. देर लाइक अराउंड 7-8, और लेट्स से देखो, नंबर सिस्टम होता है, लॉजिक होता है, कैलेंडर होता है, वेन डायग्राम्स होते हैं, ऐसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है. देर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, एंड देन देर आर क्वेश्चन जिसमें वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंबाइन हो रहे हैं, बट एक क्लैरिटी, एक बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, एंड उस मैथमेट जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हुई है इस प्रॉब्लम की, उसको कैसे कन्वर्ट करना है फाइनली टू सम मैथमेटिकल इक्वेशन, ये ना मल्टीपल स्किल्स हैं, इन सारे स्किल्स को कंबाइन करके ही यू सी दिस एंड रिजल्ट. एंड द एंड रिजल्ट इज की नथिंग फैंसी इज रिक्वायर्ड, you don't need to hurry, simply read the question, think about it, think what the approach is, visualize it, and just solve it. And that is my objective here. आगे यही मेरा objective होने वाला है कि you will see me solving these problems. And the objective is कि you don't have to be scared of CSAT. Yes, problems थोड़े difficult हो रहे हैं 2023, 24, 25. I mean, there's a definite increase in difficulty level. A lot of people are getting eliminated by CSAT, but वो डरने की जरूरत नहीं है. It is doable, and I'm here. I will show you the path so that if with enough practice, देखो practice आपको करनी होगी, but I'll show you, or I'll give you all the tools so that you can actually solve all these problems. And एक CSAT की चिंता खत्म हो जाएगी. So stay tuned to this channel. You will shortly see a follow-up video to explain कि आगे कैसे course structure होने वाला. Course नहीं है, it's not a course, it's lecture series. It's not a course. All the lecture series will be available. Watch it at your own pace. Nothing, no registration, nothing required. Yeah, so see you soon.